Hello everyone, welcome to Check Something YouTube channel, and this is the lecture 7 on Learn C++ series from basic to advanced. So I already have covered these topics. So if you have any doubt in these topics, I recommend you to watch that videos first and then you can continue with this series. Okay. So let's start with the today's topic. So today I will going to cover about the functions and the functions type. Means कि functions क्या है और functions के type कौन से होते हैं. And in the next session we'll cover about these things. Okay, means the advanced topics of the functions along with the recursion as well. Okay, so let's start. So basically function होता क्या है. So function एक block of code होता है जो execute होता है when we call it from our main function. Okay, so function भी एक block of code होता है जिसको हम अपने मेन फंक्शन से कॉल कर सकते हैं. एंड जब हम अपने मेन फंक्शन से कॉल करेंगे तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो फंक्शंस में हम कुछ वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं. वी कैन पास द डेटा विच इज ऑल्सो नोन एज पैरामीटर और द आर्ग्यूमेंट. ओके, या तो हम पैरामीटर बोल लेते हैं या तो हम आर्ग्यूमेंट बोल लेते हैं. ओके, into the functions, and functions are used for perform certain actions that are important for using the code. Okay, so क्या होता है कि जैसे let's suppose कि we have a situation where we are taking two number from the user and we want to find the maximum of both. Okay, so in that scenario what we can do, we can make a function, we can make a common function which is used to get the maximum value out of those two value. Okay, so in that scenarios we are using the functions. Okay, so अभी हम एक बार function की requirement को देख लेते हैं actual code में. So let's suppose we have this code, and in this code what we have कि we are taking three numbers from the user and we need to find the maximum of these three. So in this scenario what I am doing, I am checking two numbers. Whatever is maximum means I am checking this max and max number. Okay, and whatever is maximum I am assigning it to the maxi number. Okay, so similar way में हम second time भी यही कर रहे हैं कि इसको नंबर टू के साथ सेलेक्ट कर रहे हैं. नंबर टू बड़ा है मैक्सी से, देन वी आर असाइनिंग मैक्सी नंबर टू वैल्यू इन द मैक्सी. ओके, एंड द सिमिलर वे में हमने थर्ड टाइम भी वही किया है. सो इसमें क्या हो रहा है कि ये तीन बार हमारा सिमिलर ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी अपनी रख देते हैं, एंड अगेन वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन एंड वी आर पासिंग टू नंबर्स. ओके, वन इज मैक्सी एंड वन इज नंबर. So in this scenario you can see the same thing we have done, the one that I showed previously, this one. The problem here is ki the same block of code is repeating again and again three times. So what we are doing for that, we are creating a number, we are creating a function, and inside that function we are putting two numbers, whatever you are passing from the main function. So based on that we are returning the maximum number. If the number one is maximum, then we are returning number one, otherwise we are returning number two. Okay, सो यहाँ पे आप देखो जैसे हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करके ही जैसे दो बार हमारा फंक्शन कॉल लगा और दो बार में हमने नंबर वन और नंबर टू को पास किया. वट एवर इज मैक्सिमम वी आर असाइनिंग इट टू द मैक्सिमम नंबर, एंड देन नंबर थ्री को नंबर जो हमारा इन दोनों में मैक्सिमम आया होगा उसके साथ पास कर ले रहे हैं, और उसके बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वाली वो मैक्सी आ रही है. ठीक है, मैक्सी में. सो सिमिलर वे में आप अगर देखो तो ये कोड हमें थोड़ा सा इजी लग रहा है देखने में, समझने में, and also we are reusing that particular code, this particular code again and again in our main function. So easily understandable है, कोड की reusability बढ़ गई है. So these are the advantages that we are founding after using this function. Okay, so कुछ terms होते हैं जो important होते हैं हमारे functions में, so उनका हम discuss कर लेते हैं. So whatever we are writing first, we are calling it as return type. Whatever format we are returning it from the function. So here we are returning a number format. Okay, a integer format. That is why we are putting it as a integer, return type as integer. If we don't want to return anything, in that scenario we are writing void. Okay, void यहाँ पे लगाते हैं जब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता है फंक्शन से. तो अभी ये सेकंड क्या होता है कि हमारा ये फंक्शंस का नाम होता है. ये वट एवर यू वॉन्ट टू पुट यू कैन पुट इट, एंड इसको हम फंक्शन नेम बोलते हैं. देन कम्स फंक्शन आर्गुमेंट. ये हम जितने भी पैरामीटर पास करते हैं इनको पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट दोनों बोलते हैं. ओके, सो बोथ आर द सेम, पैरामीटर और आर्गुमेंट. सो ये हमारा क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये सेकंड आर्गुमेंट है. ठीक है, सो एंड दिस इज ब्लॉक ऑफ कोड. ये हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट वी आर यूजिंग. सो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है एंड ये रिटर्न टाइप है. ओके, रिटर्न वैल्यूज. So these are the terminologies that we are using in the functions. So let's proceed with the next slide. So हमारे function का syntax यही होता है जो I have showed in previous slide, this one. So इसका एक representation कैसा है कि पहले return type होता है हमारा, then function name होता है,
देन हमारा डेटा टाइप एंड पैरामीटर होता है. सो ये डेटा टाइप 1 होगा विद द पैरामीटर 1 एंड द डेटा टाइप 2 विद द पैरामीटर 2 एंड देन वी आर राइटिंग द ब्लॉक ऑफ कोड एंड देन वी आर रिटर्निंग समथिंग. ओके, सो ये हमारा एक फंक्शन होता है. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन. So in this I already have showed the maximum of two number how to find. So I will take the example of this one, how to find the factorial of two number. So let's write the code. So अभी हमें क्या देखना है कि हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है. So यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया यूजर से. ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक नंबर में जिसकी वैल्यू हम रख रहे हैं कुछ ऐसा, एक नंबर में हम फैक्टोरियल करके एक फंक्शन लिखेंगे जो कॉल करेंगे एंड फ्रॉम दैट वी आर पासिंग अ वेरिएबल. ओके, वी आर पासिंग अ नंबर, a integer to that particular function and we are expecting an integer value from this function. Okay, so इसको अब हम कैसे as a function format में लिखेंगे. First thing, what we are expecting from this particular function, we are expecting a integer value. Okay, so that is why we will write it like this. अब हम एक जो फंक्शन का नाम यहाँ से कॉल कर रहे हैं उसी फंक्शन को हमें यहाँ पे बनाना है so that कंपाइलर डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या है ये. So ये फैक्टोरियल हमने बना दिया. Now we are passing only one parameter of integer type. Okay, so we have to write like this कि हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं integer type का. Now हमारा फंक्शन बन गया है. Now what we are returning, we are returning a integer value. So as of now we are just returning 0. Okay, so in this scenario क्या होगा कि अगर हम इसको कंपाइल करेंगे so compilation में कोई इशू नहीं होगा because we are returning integer as a 0. Okay, from here. सो अभी आप देखो कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो चुका है एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एरर. अब हम अपना एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं फैक्टोरियल का. सो फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है. फैक्टोरियल जैसे अगर आप 4 का फैक्टोरियल निकालने जाओगे तो 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, सो सिमिलर वे में जैसे इसका आउटपुट आता है 24, ऐसे अगर हम 5 का बोलते हैं सो 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है. फैक्टोरियल बेसिकली ऐसे बनता है, नॉट का जो साइन होता है हमारा. सो इसका होता है 5 इंटू 4 into 3 into 2 into 1. okay, that will come as 120. okay, so now अभी हमें इसका लॉजिक लिखना है एंड सिमिलर वे में हमारा एक एक्सेप्शन भी होता है जिसमें इसमें होता है 0 का जो हम फैक्टोरियल निकालते हैं वो हमेशा 1 होता है. ओके, सो इफ यूजर पासिस एज 0, इफ नंबर इज इक्वल टू 0 होता है देन विल रिटर्न एज 1. ओके, सो पहला हमारा ये कवर हो गया ये वाला सिनेरियो. नाउ अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर का 1 से स्टार्ट करेंगे एंड टिल जाएंगे हम जो नंबर वो इंसर्ट किया होगा यूजर 1 1 करके प्लस करते. ठीक है, और एक हम वेरिएबल बना के रखेंगे फैक्ट करके. ठीक है, इसको हम अभी 1 असाइन करके रखेंगे. नाउ विल डू वन थिंग, विल डू मल्टीप्लीकेशन. फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई. ठीक है, ये कर सकते हैं एंड सेम चीज को हम थोड़ा सा क्लियर लिखने के लिए फैक्ट इंटू इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं. ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई एंड फैक्ट इंटू इज इक्वल टू आई. ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट होता है आपको देन हमने एक ऑपरेटर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो. ठीक है, नाउ विल रिटर्न फैक्ट फ्रॉम हियर. ओके, वी आर नॉट रिटर्निंग 0. ओके, बिकॉज वी नीड टू रिटर्न द एक्चुअल वैल्यू. सो अभी हम फैक्टोरियल रिटर्न करते हैं. नाउ विल कंपाइल एंड सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. Okay, so in this scenario we didn't have printed anything, we just need to print the value of f. Okay, so let's run again and see. Okay, so 4 का हमारा क्या होता है 24 होता है as we have predicted, and let's suppose we are finding it for 5. Okay, so 5 का 120 होता है. ठीक है, so same we have predicted. So let's proceed. So functions types क्या होते हैं हमारे. function with no argument and no return type, function with no argument but return type, function with argument and no return type, function with argument and return type. So ये basically हमारा इसी का थोड़ा फंक्शनैलिटी होता है. जैसे अगर हमसे बोला जाए सॉरी इन्हीं के ये फंक्शनैलिटी होता है जैसे फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट. ओके, सो ये हम कैसे लिखेंगे
हमें आर्गुमेंट भी नहीं देना है और कोई रिटर्न टाइप भी नहीं देना है, तो वाइड फंक्शन नेम एंड नो आर्गुमेंट। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू राइट। अभी क्या होता है, फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड देन function with argument। ओके, सो विद आर्गुमेंट। ओके, सो इन दिस सिनेरियो क्या होगा कि नो रिटर्न टाइप है तो वाइड रहेगा एंड फंक्शन नेम एज इट इज रहेगा। अभी हमें आर्गुमेंट देना है, तो जैसे आर्गुमेंट 1 दे दिया तो इंट arg1, एंड सिमिलर वे में अगर हमें कैर देना है तो कैर arg2 ऐसा कुछ करके, ठीक है। सो रिटर्न टाइप है नहीं कुछ हमारा इसमें। अभी क्या है कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप, ओके, एंड देन फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। ओके, सो इसमें क्या है कि रिटर्न टाइप है कुछ, तो हम इंट लिख देते हैं यहाँ पे एज अ रिटर्न टाइप, एंड यहाँ पे फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट हमारा कुछ नहीं है, देन हम आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं लिखेंगे, एंड इफ वी हैव द रिटर्न टाइप एज इंटीजर देन वी हैव टू रिटर्न समथिंग। ओके, सो वी हैव टू रिटर्न समथिंग विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। ओके, सो ऐसा कुछ लिखते हैं। अभी लास्ट क्या है कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड देन फंक्शन विद आर्गुमेंट। ओके, सो इन दिस सिनेरियो क्या होगा कि हम रिटर्न टाइप भी लिखेंगे एंड आर्गुमेंट भी पास करेंगे। तो ये हो गया हमारा, एंड आर्गुमेंट में हम कुछ लिखते हैं arg1, ठीक है। सो अगर हमारा रिटर्न टाइप है देन हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न समथिंग वी हैव रिटर्न। ओके, सो ये हो गया। तो ये हमारे 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं, फंक्शन विद आर्गुमेंट, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट, फंक्शन विद आर्गुमेंट विदाउट, फंक्शन विद रिटर्न टाइप, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड विद आर्गुमेंट। ओके, सो ये हमारे सारे टाइप्स हो गए। सो नेक्स्ट सेशन में हम पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय पॉइंटर, इन सब की बात करते हैं। सो आप इसके पहले पॉइंटर की फुल सीरीज हमने अपलोड कर दी है, सो आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू करके आना, सो दैट कि आपको ये इजी हो अंडरस्टैंड करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।